Hello students, welcome to my channel. So in this session I will discuss complete concept of gravitation, very important chapter for class 9th from physics portion. Okay. So we will discuss in this lecture complete chapter. Okay. पूरा का पूरा chapter मैं explain करूँगा. You can make proper notes for your further preparation. Okay. Very important chapter and very easy chapter. If you understand this chapter properly, you can attend all the questions from this. Otherwise, you will face problem. Okay. So we will discuss one or two questions also in this session, and complete theory part we will discuss in this session. So here, first thing, our chapter name, that is gravitation. Gravitation. जैसे ग्रेविटेशन नाम आता है, बच्चे के दिमाग में आता है कि अर्थ पुल एनी ऑब्जेक्ट टूवर्ड इट्स सेंटर, दैट इज ग्रेविटेशन. This is not actual meaning of gravitation. It is the part of gravitation. It is the one part of the gravitation. When we discuss about the gravitation, then it means any two mass object, exist in this universe are attracted by another mass object. Any mass object is attracted by another mass object, like this. Let this one is the object of mass m1, this one is the object of mass m2. These two mass object, these are separated by distance d. Separated by distance d, then these mass object will be attracted toward each other. Will be attracted toward each other. So this attraction property is known as the gravitation, and force of attraction is known as gravitational force. जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है उसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं, और इसके अंदर जो फोर्स है अट्रैक्शन का, दैट इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो क्या है बेसिक चीज ग्रेविटेशन? यूनिवर्स के अंदर कोई भी मास का ऑब्जेक्ट दूसरे मास की ओर अट्रैक्ट होता है. दूसरे मास की ओर क्या होता है? अट्रैक्ट होता है. तो पहली चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. नेचर पूछे तो कैसा होता है? हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स होता है, कभी रिपल्सन नहीं होता है. एक मास का ऑब्जेक्ट हमेशा दूसरे मास के ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट ही करता है. तो ये है अपने पास ग्रेविटेशन. ठीक है. अब कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में? तो ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू मास ऑब्जेक्ट एफ directly proportional to product of the mass. F directly proportional to m1 into m2. F directly proportional to m1 into m2, and F directly proportional to 1 upon d square. It is called force inversely proportional to square of distance. Inversely proportional to square of distance. So force directly proportional to product of the mass, inversely proportional to square of distance. When we write these two equations together, then F directly proportional to m1 m2 upon d square. Here F equal to g m1 m2 upon d square. G is प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. हियर जब हम ये साइन होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, जब इस साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं, और वो कांस्टेंट का यहाँ पे जी है. जी जो है दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एंड दिस इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट.
वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट g इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg। तो ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। देखिए ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बड़ा जी, आगे एक छोटा जी, दोनों में फर्क समझना। दैट विल बी एसिलरेशन, वो होगा आपका एसिलरेशन। और ये क्या है आपका, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दोनों में फर्क है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इस चीज में समझना होगा आपको। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि एक क्वेश्चन करते हैं इस बेस पे कि कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक मास का ऑब्जेक्ट है m1, दूसरा मास है m2, वैल्यू गिवन है फर्स्ट मास ऑब्जेक्ट लेट 100 kg, सेकंड मास ऑब्जेक्ट दैट 1000 kg। ठीक है, these two are separated by let 1 meter. Then what is the force of attraction between the particle? So F equal to formula G m1 m2 upon r square. So 6.67 into 10 to the power minus 11, 100 m1 m2 1000 upon 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। और आंसर विल बी 6.67 into 10 to the power minus 11, this one 100 means 10 की पावर 2 तो प्लस 2, 1000 means 10 की पावर 3 तो प्लस 3 अपॉन 1। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसमें आंसर क्या आएगा उनके पास, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 प्लस 5 दैट इज -6 न्यूटन। तो ये जो फोर्स है यहाँ पे देखो 10 की पावर -6 का मतलब समझते हो, 10 की पावर -6 ये ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है 0.000001। ये वैल्यू बहुत छोटी है। और यहाँ पे मास का ऑब्जेक्ट कितना था, एक 100 का, दूसरा 1000 का, फिर भी इतना कम फोर्स आ रहा है, फिर भी इतना कम फोर्स आ रहा है। ये क्वेश्चन कराने का रीजन है। जैसे मैंने आपको बोला कि हर एक मास का ऑब्जेक्ट दूसरे मास के ऑब्जेक्ट की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर अगर अट्रैक्ट होता है तो आपके पास जो सामान पड़ा हुआ है, टेबल कुर्सी जो भी आपके पास घर में सामान है, वो तो आपकी ओर अट्रैक्ट होना चाहिए और आपके आके स्टिक हो जाना चाहिए, चिपक जाना चाहिए। पर ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है। लॉ फेल हो गया, फेल नहीं हुआ। यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ देखो, जब मास m1 m2 को हम लोग 100 और 1000 kgp ले रहे हैं तो 10 की पावर -6 न्यूटन में फोर्स आ रहा है। 10 की पावर -6 का मतलब बहुत बहुत कम फोर्स, नेग्लिजिबल फोर्स, जिसको हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेविटेशन फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का सबसे वीक फोर्स जो है दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स। और हाईएस्ट रेंज फोर्स, इसकी रेंज हाईएस्ट होती है क्योंकि अर्थ और सन के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। अब वो इफेक्टिव होता है, वो फोर्स क्या होता है, इफेक्टिव होता है, क्योंकि उसमें अर्थ का मास और सन का मास दोनों का बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से अर्थ अपने को जो अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटेशन फोर्स है, वो भी इफेक्टिव होता है क्योंकि अर्थ का मास जो होता है, मास ऑफ अर्थ me दैट इज 6 इंटू 10⁻24 kg। तो आप सोचिए कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये फोर्स क्या होगा, जो अपन को अर्थ अट्रैक्ट करती है वो इफेक्टिव होता है। अपन को फील होता है वो फोर्स कि अपन उड़ नहीं सकते हवा में, अपन को अर्थ अपने फोर्स से क्या करती है, हमेशा अट्रैक्ट करते रखती है। जितने फोर्स से अर्थ अपने को अट्रैक्ट करती है, सेम फोर्स भी आल्सो एक्सर्ट ऑन द अर्थ फॉर द अट्रैक्शन। बट फर्क क्या है कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो जो अपन उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो उसके ऊपर इफेक्टिव नहीं होता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट अपने बॉडी का इतना मास नहीं है ज्यादा, इसलिए जब अर्थ अपने को अट्रैक्ट करती है तो वो अपने ऊपर इफेक्टिव होता है। वो क्या होता है, इफेक्टिव होता है, अपन को फील होता है। ठीक है, तो हमेशा जो फोर्स है, अर्थ अगर अपन को अट्रैक्ट करते हैं, वापिस हम भी अर्थ को क्या करते हैं, उसी सेम फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई सबसे बेसिक चीज ग्रेविटेशन की। नाउ व्हाट इज द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल पुल हम लोग देख लेते हैं।
अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। अर्थ ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है बेटा? अर्थ अट्रैक्ट ईच मास ऑब्जेक्ट टुवर्ड इस सेंटर, ये अर्थ है। लेट मास ऑफ द अर्थ दैट इज एम ई and radius of the earth that is re. So this earth is attracted toward the center of the any other mass object, ये मास का ऑब्जेक्ट है m, इसको अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी और अर्थ भी इस मास के ऑब्जेक्ट को क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। अब अर्थ का अट्रैक्शन इसकी ओर इफेक्टिव नहीं होता है, तो अर्थ का अट्रैक्शन है ऑब्जेक्ट पे वो तो इफेक्टिव है, पर जो अर्थ को ये ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि इसका बहुत कम मास है, ज्यादा मास है। यहाँ पे मान लीजिए डिस्टेंस आपके कितनी इन दोनों के बीच की r है और ये रेडियस इसकी यहाँ से यहाँ तक की अर्थ की r e, ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस है लेट r। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स? मींस वन इज अर्थ एंड वन इज मास ऑब्जेक्ट, मैं भी यू, आप भी हो सकते हो ऊपर। तो अट्रैक्शन फोर्स एफ ई दैट इज जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, फॉर्मूला यह होता है। सो हियर एफ ई इक्वल टू फोर्स बाय अर्थ g mass of earth into mass of object upon distance between center of the mass of earth and center of the mass of object, ये मास है m। ये होता है अट्रैक्शन फोर्स बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू कैन फाइंड द मास अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ आल्सो, आप मून और अर्थ के बीच में भी क्या कर सकते हो, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स फाइंड कर सकते हो। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स फाइंड कर सकते हो तो वो क्या होगा, अगर हम लोग इन दोनों में से एक चीज को लेते हैं, मून ये अर्थ है, दिस इज द अर्थ, ओके, और इसके सराउंडिंग जो ऑर्बिट है उसमें रोटेट कौन करता है, मून रोटेट करता है, ये मून है। नाउ इफ मून rotate in earth orbit regularly, to move in a circular path object always required a centripetal force, object always required a centripetal force। So for that centripetal force to moon is provided by attraction force between earth and moon, that is gravitational attraction, okay। So gravitational attraction force between earth and moon F equal to g mass of earth into mass of moon upon distance between the earth and moon, distance between the moon and earth d square, ठीक है। तो नॉर्मली जो अपन मास लेते हैं अर्थ का दैट इज 6 इंटू 10⁻24 kg। मैं नियर बाई मास बताता हूँ मून का, नियर बाई मास ऑफ मून दैट इज 10⁻22 kg एंड नियर बाई डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ दैट इज 10⁻11 मीटर। ऐसा होता, नियर बाई बोल रहा हूं मैं, हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, 10 की पावर वाली वैल्यू एग्जैक्टली याद रखिएगा, बाकी को इतना एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। ये डिस्टेंस है मून और अर्थ के बीच की, ये डिस्टेंस, ये आपका क्या है, दोनों का मास है। तो यू कैन फाइंड द फोर्स वेरी इजीली, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू एम ई 6 इंटू 10⁻24 मास ऑफ मून दैट इज you can take 10⁻22 upon radius that is 10⁻11 का स्क्वायर। तो जब सोल्व करेंगे यू विल फाइंड फॉर 6.67, यहाँ देखो पावर नीचे 22 हो जाएगी, 22 से ऊपर वाली 22 कैंसिल हो जाएगी और ऊपर कितना है 24 और -11, डिफरेंस कितना आएगा इनका, एक साथ में 6 है, 10 की पावर -11 प्लस 24 दैट इज 13। अब देखो ये फोर्स काफी हाई वैल्यू का, 10 की पावर 13 मतलब हाई फोर्स है। इसी हाई फोर्स के कारण क्या होता है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है यहाँ इफेक्टिव होता है। अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, इफेक्टिव होता है। सिमिलरली अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो भी इफेक्टिव होगा। तो हैवी मास ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटी होती है वो इफेक्टिव होती है, तो लाइट मास का ऑब्जेक्ट है वहां पे इफेक्टिव नहीं होती है। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशन पुल जो है उसके कारण
जब ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी मूव करता है, ऑब्जेक्ट क्या करता है? फ्री फॉल होता है अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल इसमें क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ विद द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, ओनली और ओनली अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए। ऑब्जेक्ट इज एट हाइट h, मान लीजिए यहां से हाइट h पे एक मास m का ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट मूव अंडर द ग्रेविटी ओनली। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अंडर द gravitational force only, gravitational force only is called free fall। क्या बोलते हैं इसको? फ्री फॉल। जब फ्री फॉल हो रहा है ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट को यहां पे जब अट्रैक्ट करती है अर्थ अपने डायरेक्शन में, अर्थ अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, तो अट्रैक्शन के कारण एक फोर्स जो लग रहा है, उस फोर्स से एक एसिलरेशन प्रोड्यूस होगा, सेंटर के ऊपर एसिलरेशन होता है, उस एसिलरेशन को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल एसिलरेशन। क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल acceleration। So this acceleration is produced due to attraction force between mass object and earth. So it is also known as acceleration produced by attraction force between earth and object, तभी वो एसिलेशन प्रोड्यूस होगा। तो नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं ग्रेविटेशनल एसिलरेशन, वो होता है जी। क्या होता है? जी से लिखते हैं। नाउ हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे? यू नो, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड मास ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस ऑफ आर, लेट इट इज ऑन द सरफेस, सो डिस्टेंस आर। तो जी एफ इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। बट वी नो फोर्स ड्यू टू एसिलरेशन, फोर्स ड्यू टू एसिलरेशन क्या होता है? फोर्स ड्यू टू एसिलरेशन एफ इक्वल टू एम ए होता है, एफ इक्वल टू एम ए। सो हियर एफ इक्वल टू एम इंटू जी होगा, एम इंटू जी होगा, इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हेन वी कंपेयर दीज टू, यू विल फाइंड एम इंटू जी इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। यू नो, equation 1 and equation 2 both represent same force, that means value of these two equation must be equal, दोनों की equal होनी चाहिए, तो यहाँ पे लिख दिया। this m is cancel out by this one, so g equal to g m e upon r square, g m e upon r square। ठीक है? That's why we can find the value of g also, we know the mass of the earth, we know the radius of the earth, we know the gravitation constant capital G also. If we put the value in equation, you know, g equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton into meter square upon kg square, and mass of earth, that is 6 into 10 to the power 24 kg, and r radius of the earth, that is 6400 kilometer, or we can say it is 6.4 into 10 to the power, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना तो 3 पावर्स लग जाएगी, 2 ऑलरेडी है और एक पॉइंट लिख दिया, तो 10 की पावर 6 मीटर। When we put the value in the formula, we will find g equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 into 6 into
10⁻24 अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर. You will find g as 9.8 meter per second square. Unit of acceleration always meter per second square. Unit of acceleration is always meter per second square. In this way, we can find value of gravitational acceleration. We can find value of gravitational acceleration. Okay. Now, acceleration is not constant everywhere. When we 9.8, we are taking the g as a 9.8. That means acceleration on the surface of the earth. When we move above from the surface, then g also decrease, and when we move inward the earth, then also g decreases. ठीक है, तो जो सरफेस पे एक्सीलरेशन होता है दैट इज 9.8. अगर आप अर्थ के ऊपर मूव कर रहे हो तो आपका जी डिक्रीज होगा, और आप अर्थ के अंदर भी जा रहे हो तो भी जी क्या होगा, डिक्रीज होगा. अलग अलग प्लानट का एक्सीलरेशन पुल अलग अलग होता है. जैसे मून भी अपने को क्या कर, मून भी हैवी मास ऑब्जेक्ट, तो उसके ऊपर जो एनवायरनमेंट है वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो वहां पे जो पुल होता है ग्रेविटेशन पुल, वो अर्थ के कंपेरेटिवली कम होता है. वहां का जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटेशन फॉर मून, जी ऑफ मून, दैट इज g/6, मीन्स 6 टाइम लेसर देन ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ. तो अर्थ पे जो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है उसका 1/6 कहाँ होता है, मून पे होता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे मान लीजिए 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अर्थ पर, कितने का, 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अर्थ पे, तो वही फोर्स अगर अपन मून पे जाके एक्सपीरियंस करेंगे तो दैट इज इक्वल टू ओनली 10 न्यूटन. 1/6 ऑफ 60 दैट इज 10 न्यूटन फोर्स. इतना फर्क होता है. तो अर्थ पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, मून पे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मून का मास अर्थ का कंपेरेटिवली कम है और उसकी रेडियस भी कम है. तो ये चीज ध्यान देनी है. इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग. वन कॉन्सेप्ट वी हैव दैट इज मास एंड वेट. मास एंड वेट. मास एंड वेट. मास एंड वेट क्या होता है? सो मास इज द एक्चुअल सब्सटेंस, एक्चुअल substance present, actual substance present, that is known as the mass. And weight is the gravitational pull, gravitational pull on object, that is the weight. Okay, so m always constant, mass of object is constant, weight of object w equal to mg. तो वी नो g वेरी, g क्या करता है, वेरीज अकॉर्डिंग टू पोजिशन, अकॉर्डिंग टू पोजिशन. हेंस w आल्सो वेरी. अगर आपका मास अर्थ पे 50 kg है, कितना है, 50 kg है आपका मास, अर्थ पे है 50 kg, तो वो मास मून पे भी 50 kg ही रहेगा. m ऑन अर्थ एंड m ऑन मून विल बी 50 kg, रिमेन सेम, क्योंकि आपके अंदर जो सब्सटेंस है वो तो अर्थ और मून पे सेम ही रहेगा. बट वेट, योर वेट विल बी चेंज, योर वेट विल बी चेंज. यू नो w इक्वल टू mg. So W on Earth, WE, that is m into g of Earth, and W on Moon, that is m into g of Moon. And we know gravitation acceleration on the Moon is 1/6 of Earth. So W of Moon, that is m into g by 6. So that is W/6. अगर आपका वेट यहाँ पे 600 kg है, न्यूटन है, वेट क्या है 600 न्यूटन. वेट की ऐसा यूनिट जो होती है ना बेटा,
इट मेजर इन न्यूटन एंड मास मेजर इन केजी। वेट मेजर होता है न्यूटन में एंड मास मेजर होता है केजी के अंदर। आपका अगर अर्थ पे वेट है मान लीजिए 600 केजी, कितना मास? 600 केजी वेट है, 600 केजी वेट है अर्थ पे। देन ऑन मून योर वेट विल ओनली 100 केजी बिकॉज इट इज 1/6 ऑफ अर्थ वेट। वो अर्थ के वेट का 1/6 होता है ओनली और ओनली। इस चीज का आपको क्या रखना है, अच्छे से ध्यान में रखनी है चीजों को कि कैसे वेट और मास अलग अलग है, दोनों में क्या फर्क है। तो मास एक्चुअल सब्सटेंस, वेट ग्रेविटेशनल पुल। ओके, मास ऑलवेज कांस्टेंट, वेट चेंज अकॉर्डिंग टू पोजीशन। मास कहीं भी चले जाओ हमेशा सेम रहेगा। वेट क्या होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन चेंज होगा और इसीलिए वेट भी क्या होगा, चेंज होगा। मास किसी अदर पे डिपेंड नहीं करता है, वेट एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है। मास की यूनिट है किलोग्राम, वेट की यूनिट है न्यूटन, वेट की यूनिट है न्यूटन। तो ये आपका कंसेप्ट होता है वेट एंड मास। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है वो हमें देखना है। तो यहां पे देखिए, यू नो इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जो लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस की थी। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, देन एंड देन वी कैन अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज आप ये इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां पे देखो, ये तीनों इक्वेशन हमारे पास एक्सीलरेशन a है, बट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटी के अंडर मूव करता है, अर्थ के ग्रेविटी के अंडर मूव करता है, तो यहां पे दो चीजें होती है, एक तो होता है अपवर्ड मोशन, एक होता है डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन और दूसरा होता है अपवर्ड मोशन। You know, acceleration due to gravity that is always toward the center of the earth। तो g की वैल्यू होती है वो हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर होती है, हमेशा क्या होती है, अर्थ के सेंटर की ओर होती है। ठीक है, अर्थ के सेंटर की ओर होती है हमेशा g की वैल्यू। अगर अपन डाउनवर्ड मोशन में बात करें तो g भी उसको अपनी ओर पुल कर रहा है और मोशन भी उसी साइड में है। इसका मतलब वहां पे ये एक्सीलरेशन पॉजिटिव वर्क कर रहा है, इसकी स्पीड को बढ़ा रहा है, स्पीड को बढ़ा रहा है मींस पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है तो जी डाउनवर्ड है, जी क्या है आपका, डाउनवर्ड। ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, ऊपर, तो ये स्पीड को कम करेगा, कम करेगा मतलब यहां पे रिटार्डेशन का फंक्शन करेगा। तो ऑब्जेक्ट जब अपवर्ड मूव करता है, व्हेन अपवर्ड मोशन वी विल टेक a इक्वल टू माइनस जी, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट मूव डाउनवर्ड वी विल टेक a इक्वल टू जी। वैसे जी हमेशा नेगेटिव ही होता है, दैट इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। जी इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज इट्स अकर टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर क्या करता है, अकर करता है, इसलिए इसको नेगेटिव लिखते हैं हमेशा। और तो यहां पे जब इक्वेशन लगाएंगे तो v इक्वल टू यू प्लस ए की जगह जी तो जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। सिमिलरली यहां पे पुट करेंगे तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh।
हाइट हम लोग h लिख देंगे, यहाँ पे नॉर्मली हाइट होती है तो h लिखेंगे, 2gh। ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई अंडर ग्रेविटेशन। जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करेगा देन टेक g एज नेगेटिव, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट मूव डाउनवर्ड देन टेक g एज ए पॉजिटिव वैल्यू। दैट विल बी इजी फॉर सॉल्यूशन पर। समझ में आ गई आपको बात अच्छे से? ये चीजें अच्छे से लिख लेना आप लोग नोटबुक के अंदर, ताकि इजीली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अब मैं एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, देन यू विल गेट द कंसेप्ट। लिख लीजिए इसको, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए भाई, अगला पॉइंट क्या है अपना, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, मास है 100 kg का, ठीक है? और इसको 100 मीटर की हाइट से, 100 मीटर की हाइट से सिर्फ ड्रॉप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं। देन एट विच या बाय विच वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक ऑन ग्राउंड। हाइट 100 मीटर, फाइंड वेलोसिटी बाय विच ऑब्जेक्ट strike on ground if drop from 100 मीटर हाइट। 100 मीटर की हाइट से क्या कर रहे हैं हम लोग? ड्रॉप कर रहे हैं, तो किस वेलोसिटी से ग्राउंड पे आकर टकराएगा? तो यहाँ पे देखो, जब ड्रॉप करते हैं दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी यू विल बी जीरो। यू क्या होगा? जीरो होगा। हमें टाइम नहीं गिवन है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, ओके? एंड हाइट दे रखी है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जब अप्लाई करनी है आपको, आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन कौन सा डेटा हमारे पास अवेलेबल है और कौन सा अननोन है। अगर फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लगाते हैं तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी गिवन नहीं है, इसका मतलब टाइम गिवन नहीं है, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। वी कैन अप्लाई थर्ड इक्वेशन हियर। सो यू नो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अंडर ग्रेविटी ये इक्वेशन पढ़ी थी हमने। फाइनल वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड, सो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर दैट इज जीरो, ड्रॉप करा जीरो तो 2gh। तो अवर आंसर इक्वल टू वी इक्वल टू √2gh। अगर आपको बोल दे कई बार कि इफ ए ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम द हाइट h देन व्हाट इज द वेलोसिटी एट विच स्ट्राइक ऑन ग्राउंड, तो v इक्वल टू √2gh। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे v अपने पास आ सकता है, वैल्यू अपने पास। अगर नॉर्मली g अगर 9.8 लेते हैं, पर अगर बोल दे कि 10 ले तो 10 ले सकते हैं। g की वैल्यू आप कैलकुलेशन इजी करने के लिए कितनी ले सकते हैं? 10। तो 2 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी है? 100। तो अवर आंसर विल बी 2000, या इसको ऐसे लिखते हैं 20 इंटू 100। 100 का बाहर क्या आ जाएगा? 10। तो 10 √20, √20 को भी और सॉल्व कर सकते हो। 10 इंटू 4 इंटू 5, 4 का बाहर 2 आएगा, 2 इंटू 20, तो 20 √5 मीटर पर सेकेंड विल बी योर स्पीड। 20 √5 मीटर पर सेकेंड विल बी योर स्पीड बाय विच ऑब्जेक्ट स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड। उस स्पीड से ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है? अब इसमें एक चीज और पूछ सकता है, व्हाट इज द टाइम टू रीच ऑन ग्राउंड? कितना टाइम लगेगा? तो हमारे पास क्या है? हाइट गिवन है h, इनिशियल स्पीड गिवन है, वी हैव टू फाइंड टाइम। फाइनल स्पीड नहीं पता मुझे। जब फाइनल स्पीड नहीं पता है, हाइट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है और टाइम फाइंड करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगेगी, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में फाइनल स्पीड चाहिए। ये निकाल दी, अलग बात है। सेकेंड इक्वेशन लग सकती है, थर्ड लगेगी नहीं, क्योंकि मुझे टाइम फाइंड करना है, थर्ड में टाइम का कोई रोल नहीं है। तो सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे तो h इक्वल टू, जहां वहां हाइट लिखते हैं ना h, तो यहाँ पे h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। वी हैव टू फाइंड द टाइम। इनिशियल अपने पास वेलोसिटी कितना है? जीरो, और h हमारे पास हाइट h है, ये 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू h। ये तो जीरो हो गया पूरा। देन
टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2h अपॉन जी, ये 2 मल्टीप्लाई में चला गया, जी डिवाइड में, तो टी इक्वल टू कितना आएगा, √2h अपॉन जी। तो जिस स्पीड टाइम कितना लगेगा, √2h अपॉन जी। अगर यहां पे इस क्वेश्चन में टाइम निकालें, टी इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू हाइट 100 अपॉन जी 10, ये हो गया आंसर, √20 सेकेंड। या इसको क्या ले सकते हो, 4 इंटू 5, तो 2√5 सेकेंड। ये आंसर आ गया किसका, टाइम का। तो इस तरह से आप लोग टाइम फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हो, टाइम फाइंड कर सकते हो। किस स्पीड से ग्राउंड पे आकर टकराएगा वो फाइंड कर सकते हो। और सिंपल जो क्वेश्चंस बनेंगे वो तो जैसे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़े थे, सेम इसी टाइप के बनेंगे। केवल यहाँ पे एक ही जगह क्या यूज करना है, जी यूज करना है। अपवर्ड मोशन है तो जी नेगेटिव लेना है, और डाउनवर्ड मोशन है तो जी को आपको पॉजिटिव लेकर चलना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द अर्थ ग्रेविटेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड वेट एंड मास। ये सारा कंसेप्ट इसके बारे में था। अब हम लोग कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में, फ्लोटेशन के बारे में। कि फ्लोटेशन का मतलब तैरना होता है वैसे। तो फ्लोटेशन रिलेटेड जो आपके टॉपिक है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। उसमें कौन कौन सी टर्म इंपॉर्टेंट है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। वो सारे टर्म भी मैं देखने वाला हूं, ठीक है। फ्लोटेशन, वी विल डिस्कस कंसेप्ट ऑफ फ्लोटेशन। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ। एक है थ्रस्ट, ठीक है। थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द buoyancy and we will discuss about the Archimedes principle. आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये सारी चीजें मैं एक ही साथ बता रहा हूं आपको सिंपल वे में। थ्रस्ट, थ्रस्ट इज द परपेंडिकुलर फोर्स ऑन द लिक्विड सरफेस। थ्रस्ट, परपेंडिकुलर फोर्स ऑन लिक्विड सरफेस। तो थ्रस्ट एक तरह का फोर्स ही है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। ऐसा यूनिट न्यूटन, ठीक है। फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स ऑन द लिक्विड सरफेस, दैट इज थ्रस्ट। प्रेशर, फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया, force on per unit area of liquid, that is known as the pressure. So P equal to F upon A, force upon area। ऐसा यूनिट इसकी होती है पास्कल। ऐसा यूनिट होती है पास्कल। दिस इज द थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट इज परपेंडिकुलर फोर्स, कोई भी लिक्विड की सरफेस उसको परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, दैट इज नोन एज द थ्रस्ट। और प्रेशर की पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज नोन एज द प्रेशर। बुयांसी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बुयांसी क्या होता है, when any object any object emerged to in a liquid, when any object emerged into a liquid, then liquid will apply a upthrust force. Liquid will apply a upthrust force. Upthrust means perpendicular force on the surface. जो ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। सो लिक्विड विल अप्लाई upthrust force on the object. This force is known as buoyancy force, and this application of force, that is buoyancy, that is buoyancy। तो मतलब क्या हुआ इसका, कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अंदर हम लिक्विड में डालेंगे तो लिक्विड उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को हम बुयांसी फोर्स बोलते हैं। और ये जो पूरा फिनोमेना होता है, दैट इज नोन एज द बुयांसी। क्या बोलते हैं इसको, बुयांसी। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इनटू ए लिक्विड, then a upward force will be act on that object. That force is known as buoyancy force, and this phenomena of upward force is known as buoyancy, known as buoyancy।
इसी के कारण क्या होता है, जब अपन देखते हैं लकड़ी वगैरह जो होती है पानी पे तैरती है, क्यों तैरती है? क्योंकि जैसे ही लकड़ी को पानी में डालते हैं उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है, कई ऑब्जेक्ट तैर पाते हैं, कई ऑब्जेक्ट नहीं तैर पाते हैं। तो जिनकी डेंसिटी पानी से कम होती है या लिक्विड से कम होती है, एनी ऑब्जेक्ट विच लिक्विड इज लेस देन द any object which density is less than liquid density that will float, वो क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे। जब किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो लिक्विड फ्लोट करेगा, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो वो उसके अंदर सिंक हो जाएगा। अगर दोनों की इक्वल डेंसिटी है तो भी क्या करेगा? फ्लोट करेगा, पर वो ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा लिक्विड के अंदर रहेगा। जैसे पनडुब्बी होती है ना, पानी के अंदर तैरती है, तो उसमें डेंसिटी दोनों की सेम बन जाती है। उसकी अलग स्ट्रक्चर होती है पनडुब्बी की, पर वो अलग पूरा का पूरा रहेगा। ठीक है, तो बोयॉन्सी क्या होता है? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट is immersed in a liquid, then liquid will apply a upward force. That force is known as buoyancy force, and this phenomena is known as the buoyancy. Okay, due to buoyancy any object can float on the object. A object will float in liquid if their density is less than the liquid. If density is more than the liquid, then object will be sink, and if density of the object is equal to the liquid, then object will float but completely sink into the fluids या liquid, पूरा का पूरा अंदर रहेगा, इमर्ज होगा अंदर पूरा का पूरा। ठीक है, अब यहां पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है, ये बोयॉन्सी फोर्स की वैल्यू देता है। क्या देता है? ये बोयॉन्सी फोर्स की वैल्यू देता है। तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बोयॉन्सी फोर्स विल इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालोगे तो उससे क्या होगा? वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, जगह लेगा, तो वो अपनी जगह लेने के लिए कितना लिक्विड हटा रहा है, उस लिक्विड का वेट किसके इक्वल होगा? बोयॉन्सी फोर्स के इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बोयॉन्सी फोर्स इक्वल टू द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, liquid displaced by the object. So buoyancy force FB equal to weight of liquid displaced by the object, or we can say ml into g. वेट क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, ml इंटू जी। m मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये होता है अपने पास। इस तरह से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? बोयॉन्सी फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करके। ठीक है, तो ये आपका कुछ बेसिक फिनोमिना है अप टू 9th क्लास लेवल। आप 11th में आओगे तो ग्रेविटेशन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर 9th क्लास दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशन चैप्टर। ओके गाइज, सो वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली, मेक ए प्रॉपर नोट्स, देन यू कैन गेट एवरीथिंग वेरी इजीली फ्रॉम द ग्रेविटेशन। ओके, अगर आपको अच्छा लगे, then what you have to do? Share with your friends as well, like and subscribe our channel as well. Okay, thank you everyone for watching.